मैंने उनको ये बात बताई कि मैं पुर्तगाल 3 से 4 दिन रुकूंगा। मुर्तज़ा भाई, असल में मेरा मकसद यहाँ पे ये था कि वैलिड वीज़े पे मैं यहाँ इंटर हो जाऊँ, फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड ले लूँ। उनको कल डिपोर्ट कर दिया गया। उनसे क्या सवालात पूछे गए, उनसे सबसे पहले ये पूछा कि आप नीदरलैंड वीज़े पे आप यहाँ पुर्तगाल क्यों उतरे हो, माना आपके पास शेंजन वीज़ा है लेकिन वाई यू लैंडेड इन पुर्तगाल। तो उसने फिर उनसे ये अगला सवाल ये पूछा कि अगर आप पुर्तगाल उतरे हो तो अगला डेस्टिनेशन आपका कहाँ है। आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि मैं पुर्तगाल के, यूरोप के, शेंजन के तमाम इमिग्रेशन के मामला आपसे डिस्कस करता रहता हूं। आज मेरे साथ एक बहुत अहम पर्सनैलिटी हैं जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है। इनका चैनल भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। आज इनसे पुर्तगाल और जर्मनी के हवाले से कुछ बात करेंगे। इनके जो एक्सपीरियंस है वो आप तक पहुंचाएंगे। 8 साल 9 साल, हाँ जी 8 साल, तकरीबन 8 साल ये जर्मनी में रहे हैं। जर्मनी से ये पुर्तगाल आए हैं। यहाँ पर भी अच्छा इनका बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर भी इनका बिजनेस था। इनसे पूछेंगे कैसा लग रहा है इनको पुर्तगाल। अच्छा, मेरा पहला सवाल ये है कि आप इतना अरसा जर्मनी में रहे हैं, तकरीबन 8-9 साल, तो कोई भी आदमी अगर टूरिस्ट वीज़े पे, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से वो टूरिस्ट वीज़ा लेके जर्मन आता है, तो अभी करंट पोजीशन क्या है? क्या वो वहाँ सेटल हो सकता है, रह सकता है? नहीं, देखो टूरिस्ट ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਘੁੰਮਣ ਲਈ, ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ ਓਕੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿੰਗਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਪੇਪਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਈਟ। ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ 1-2 ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਖਤਾਈ ਆ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਫੈਲ ਲੌਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਏਜ ਘੱਟ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਰਾਈਟ, 18 ਸਾਲ 19 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਆ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ स्टडी वीज़ा ले सकता है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि बहुत सारे लोग हमारे कंट्रियों से जाते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जाके जर्मन में असाइलम करते हैं। तो चूंकि आप इतना अरसा रहे हैं जर्मन में, तो वहाँ के असाइलम की क्या पोजीशन है? क्या ओरिजिनल लोगों को ही दिया जाता है, बाकी जो लोग हैं उनको डिपोर्ट कर देते हैं? जैसे ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਫਿੰਗਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਦਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਈਟ। तो आसानी से असाइलम अप्रूव हो जाता है जर्मन में? बहुत घट आ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਲਾਇਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਯੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, नहीं तो अदरवाइज नो। अच्छा, शेंजन में, क्योंकि इतना अरसा आप यूरोप में रहे हैं, शेंजन में कौन सा बेस्ट कंट्री आपको लगा जहाँ पे आप आराम से सेटलमेंट अपने कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकते हैं? ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਵੀ ਚਲੋ ਈਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਭਲਾ, ਚਲੋ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਆ ਕੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਏ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਮਿਲਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਰਮਨ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇ ਲੈ ਲਈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਆਪਾਂ। ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ 1 ਆ, ਸਲੂਟ ਆ ਜਰਮਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਜਰਮਨ ਐਸੀ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਘਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲकुल नंबर 1 जर्मन जिंदाबाद। अच्छा, आपकी इसी बात से मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ाऊँ कि जिस वक्त पुर्तगाल की इमिग्रेशन खुली थी, तो जैसे कि मैं यूट्यूब पे हूँ तो मुझे सारे लोग अपनी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि मुर्तज़ा भाई हम प्लान कर रहे हैं पुर्तगाल आने का। वो पुर्तगाल बड़ी तादाद में आए, और पुर्तगाल आने के बाद जब उन्होंने यहाँ के हालात देखे कि ज़ाहिर नौकरी के मौके यहाँ कम है और सैलरीज़ यहाँ कम है, तो सब लोगों ने मूव किया जर्मन, फ्रांस, इटली की तरफ। आज पुर्तगाल के पेपर बंद हो गए हैं और वो लोग वहीं फंसे हुए हैं, जर्मन, इटली, फ्रांस में। और अब उनको कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कि उनको पीछे वापस घर भी जाना है। अब वो घर भी नहीं जा सकते, वो फंस गए ना। अब वो पुर्तगाल आते हैं तो पुर्तगाल उनको पेपर नहीं देता। अब वो जर्मनी में असाइलम करके बैठे हैं, फ्रांस में असाइलम करके बैठे हैं। तो अब वो 10-10 साल जिनके ओरिजिनल केस हैं, उनका भी ये है कि 10-10 साल उनका केस चलेगा। तो वो मेरे वो तमाम भाई बहुत परेशान हैं, उनके लिए क्या कहते हैं आप?
ਸਪੇਨ ਚਲ ਜਾਓ, ਸਪੇਨ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਾ ਲਓ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਇਟਲੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਪੇਪਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਰਾਈਟ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ, ਹਾਂ ਲੱਕ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਜਰਮਨ ਬੱਚਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ टाइम लेते हैं इस कारण। अच्छा, जर्मन में, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, ऐसा है कि अगर पेरेंट्स के पास पासपोर्ट नहीं है और उनके पास इंडिया या पाकिस्तान का पासपोर्ट है, उनका बेबी वहाँ बॉर्न हो जाता है, तो जर्मन पासपोर्ट देता है बच्चे को? नो 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 नहीं देता है। बहुत सिर्फ ये चीज़ पुर्तगाल में ही है? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਾਦਰ ਸ਼ਿਫਟ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ, ਬਸ ਦੇਸੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ जी अच्छा, जर्मनी के अंदर एक बंदा लीगल या इनलीगल कितने पैसे कमा लेता है मंथली? ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬੰਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਮੀਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੀਜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਚਲੋ ਜਿਹਨੇ ਜੀਲ ਕਰਾਈ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਭਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ 1000 ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ 1500 ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਖਰਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ, ਰੇਟ ਹਰੇਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉੱਥੇ, ਰਾਈਟ। ਚੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਟੋਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਮੇਕਰ ਆ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੀਲ ਕਰਾਈ 'ਚ ਕੁਛ 1500 1800 2-2000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਔਰ ਬੋਸਟੇਲੀ ਸਰੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। जो इंडिया से पुर्तगाल आता है या यूरोप आता है, उसकी ज़िंदगी कैसी फील करते हैं आप? क्या बेहतर है? ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੈਸਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ करनी पैंती है, राइट। दोस्तों, एक पुर्तगाल के हवाले से एक अहम इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूं कि अभी रिसेंटली ट्यूसडे को यहाँ की जो पुलिस है, उन्होंने एक ऑपरेशन किया है लिस्बन में किया है, जिसमें इन्होंने कोई 420 बंदों को इन्होंने चेक किया है। उसमें से 3 बंदे इन्होंने अरेस्ट किए हैं और अरेस्ट करके इन्होंने अपनी कस्टडी में उनको रखा है, यकीनन उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अगर आप लिस्बन में या पूरे पुर्तगाल में कहीं भी घूम रहे हैं, तो यहाँ पर अब चेकिंग शुरू हो गई है इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़। और अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड है, वो अपने जेब में रखें। टूरिस्ट वीज़े पे यहाँ नीदरलैंड से, जैसे अभी कल एक भाई आया, उसका सुबह मेरे पास कॉल आया एयरपोर्ट से, वो कह रहा है कि मुर्तज़ा भाई मेरे पास नीदरलैंड का वीज़ा था और मैं यहाँ पुर्तगाल इमिग्रेशन में जब मुझे रोका गया, मुझसे पूछा गया कि भाई ये बताएं, आपके पास 12 दिन का वीज़ा है और था नीदरलैंड का, तो आप यहाँ पुर्तगाल क्यों उतर गए? मैंने उनको ये बात बताई कि मैं पुर्तगाल 3 से 4 दिन रुकूंगा। मुर्तज़ा भाई, असल में मेरा मकसद यहाँ पे ये था कि वैलिड वीज़े पे मैं यहाँ इंटर हो जाऊँ, फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड ले लूँ। उनको कल डिपोर्ट कर दिया गया। उनसे क्या सवालात पूछे गए, उनसे सबसे पहले ये पूछा कि आप नीदरलैंड वीज़े पे आप यहाँ पुर्तगाल क्यों उतरे हो? माना आपके पास शेंजन वीज़ा है, लेकिन वाई यू लैंडेड इन पुर्तगाल? तो उसने फिर उनसे ये अगला सवाल ये पूछा कि अगर आप पुर्तगाल उतरे हो तो अगला डेस्टिनेशन आपका कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि मैं नीदरलैंड जाऊँगा। तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर ने बोला कि अगर आप नीदरलैंड जाओगे तो हमें या तो अपनी पाकिस्तान की रिटर्न टिकट दिखा दो कि आप वापस पाकिस्तान जाओगे, नहीं तो आप यहाँ से जो नीदरलैंड जाओगे उसकी बस टिकट या जहाज़ की टिकट दिखा दो, या कोई होटल रिजर्वेशन दिखा दो नीदरलैंड की, या वापसी जाने की टिकट दिखा दो। तो वो मेरा भाई कुछ भी नहीं दिखा सका, क्योंकि उसका प्लान यहाँ पर आके यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा लेकर यहाँ रेजिडेंस कार्ड लेने का था, तो जिसकी वजह से उसको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया एयरपोर्ट से ही। तो मेरे दोस्तों, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। अब यहाँ पे जो इमिग्रेशन के मामला हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं। जिस कंट्री का वीज़ा लेकर आ रहे हैं, फर्स्ट उस कंट्री में लैंड करें, उसके बाद फिर ट्रैवल करें। और दूसरा कंट्री में होना, सॉरी, जैसे भाई ने बताया, जो उसका नीदरलैंड का वीज़ा, पहले उधर जाओ, उसके बाद फिर पुर्तगाल आना, इटली जाना, कि जाना, होटल बुकिंग पा के रिटर्न टिकट करके पक्के पैरी आओ। ये नहीं बाद में थोड़ा सवाल जवाब ना आवे मौके ते, राइट। मेरे दोस्तों, एक बात आप लोग और बताऊं कि इवन स्वीडन ने तो ये बात बोल दी है कि इनकी एक पार्लियामेंट में एक बिल रह गया है, जिसकी मंजूरी के बाद ये करने लगे हैं। $34,000 ये देंगे, और ये हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश जितने भी ये स्वीडन में बैठे हैं उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई 34,000 ले लो हमसे और हमारा कंट्री छोड़ दो। तो और साइन करके जाओगे, दोबारा इस कंट्री में नहीं आओगे, वरना सज़ा दी जाएगी। तो ये हम लोगों से इतना परेशान हो गए हैं, ये पूरे यूरोपियन इतना तंग आ गए हैं कि ये अपने कंट्रियों से निकालने के हमें हाथ जोड़ के हमें पैसे भी दे रहे हैं कि भाई ये 34,000 भी लो हमसे और जाओ हमें हमारे कंट्रियों से, और वापस नहीं आना यहाँ पे। तो प्लीज़, जैसे भाई ने ये बात बोली कि अपनी हरकतें जो हैं वो ठीक रखें, बाहर खड़े होकर शराब नोशी और गैर ज़रूरी मोहल्लों के बाहर ना खड़े हों, जिसकी वजह से ये नए आने वालों के लिए प्रॉब्लम ना हो। बाकी अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। थैंक यू।